know, when the Spirit of God leads, जब परमेश्वर की आत्मा चलाता है, we don't walk by flesh. हम देह से नहीं चलते हैं। Amen. So when the flesh works, जब शरीर काम करता है, you become like Lot's wife. हम लोट की पत्नी जैसे बन जाते You हैं। know what happened one day? God spoke to me the other day. Last week I was in prayer. पिछले सप्ताह में प्रार्थना में बैठा तो प्रभु ने मुझसे बातें की। Suddenly God showed me Sodom and Gomorrah. अचानक प्रभु ने मुझे सोदोम और गुमोर को दिखाया। And you know, the Lord spoke to me and said, प्रभु ने मुझसे बातें की और कहा, Lot and his two daughters, they moved on. लूत और उस दोनों बेटियां, Hallelujah. Lot and his two daughters, they moved on in life. लूत और उसकी दोनों बेटियां जीवन में आगे बढ़ती गईं, But Lot's wife, she stayed in life. लेकिन लूत की पत्नी पीछे रह गई। Till today she is standing there only. आज तक भी वहीं पर खड़ी है वो। Why? क्यों? Because God said, Isaiah 43:10, क्योंकि प्रभु क्या कहता है यशाया का 43:18 में, do not remember the past, I am going to do a new thing. बीती हुई बातों को स्मरण न कर, देखो मैं तेरे जीवन में एक नए काम Do करने not वाला हूं। remember the former things, nor consider the things of old. अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ। Hallelujah. Means by having this, they moved on in life. यानी ये सिर्फ बातों को रखते हुए आगे बढ़ते गए। But Lot's wife, लेकिन लूत की पत्नी, she was having the former things. लेकिन उसने क्या किया, वो बीती हुई घटना को याद कर रही थी, She was considering the things of old. पुरानी चीजों को ही वो याद कर रही थी। That's why she did it. इसलिए क्या What she की? did? वो क्या की? पीछे देखो, देख कितना इजीली देखते, पीछे देखो। See your attitude. देखो तुम्हारे रवैया को, You need to think. आपको सोचना है। If I say पीछे देखो, पीछे क्यों देखने का? अगर परसों ने कहा पीछे I मुड़कर did- देखो, तो पीछे क्यों देखना I है? did not tell you what is there behind. मैंने तुम्हें बताया भी नहीं पीछे क्या है, But I just said पीछे देखो. केवल कहा कि पीछे मुड़कर देखो। You know, there should be a connection between you and God when God is speaking. तुम्हारे बीच में, प्रभु के बीच में कनेक्शन होना जरूरी जब प्रभु तुमसे बातें So करता है। that's what many people today, they are stuck in the old things and consider of the old, and they are like Lot's wife. They are looking and they're looking and they're looking and they're looking, but nothing happening. But Lot and his children, they moved on in life. तो देखो, तो कुछ लोग हैं, देखो लोत की पत्नी के जैसे कुछ लोग हैं, पीछे देख रहे पीछे बातों को ही याद करते रहते, इसलिए वो वहीं पर रह गए। लेकिन लोत और उसकी The Holy बच्ची Spirit- आगे बढ़ती गई। The Holy Spirit told me, move on. Don't look at anybody. पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तू आगे बढ़ता जा, किसी को देख मत, Hallelujah. Move on. आगे बढ़ता जा। Whether people follow you, whether they are with you or not with you, keep moving. लोग तेरे साथ चल रहे नहीं चल रहे, आगे बढ़ना चाहते नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन तू आगे बढ़ता जा। And that's why the message was birthed out of this, the Holy Spirit, our superpower. इसके द्वारा ये संदेश आज का उत्पन्न हुआ है, पवित्र आत्मा हमारी मजबूती ताकत। Hallelujah. Holy Spirit is my superpower. पवित्र आत्मा मेरा मजबूत ताकत है। You may have Superman as your superpower. तुम्हारे पास सुपरमैन होगा, सुपर पावर सामर्थ्य। You have a Spider-Man as your superpower. कोई स्पाइडरमैन है जो सुपर पावर बोलते हैं, You have a Batman as your superpower. बैटमैन को सुपर पावर बोलते हैं कोई, Or you may have Tom and Jerry as your या superpower. तुम्हारे शायद तुम्हारे टॉम एंड जेरी सुपर पावर Or होगा, you may have, what is that? नया वाला Luffy. Your superpower is Luffy. सुपर पावर तुम्हारा लूफी होगा। He will eat noodles. I will also eat noodles. वो नूडल्स खाता तो मैं भी He नूडल्स will eat खाऊंगा, dog biscuit. I will also eat dog biscuit. वो डॉग बिस्किट खाता तो मैं भी डॉग बिस्किट खाऊंगा। So, church, this is the time we need the Holy Spirit as our Superman. कलीसिया, ये समय है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो हमारे लिए सुपरमैन होना जरूरी Say with me, है। Holy Spirit is my superpower. कहो, पवित्र आत्मा ही मेरा सुपर पावर है। You know, a believer must understand the power of the Holy Spirit. एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानना जरूरी है। A believer's life should be filled with the power of the Holy Spirit. एक विश्वासी को जीवन को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना जरूरी है। A person should be filled with the power of the Holy Spirit. एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए होना जरूरी है। And you and I need to understand the power of the Holy Spirit in our life. तुम्हें और मुझे पवित्र आत्मा की जो महत्व क्या है, उसे अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी That's why है। Bible says in Ephesians 6:10, इसे बाइबल कहते हैं इफिसियों का 6:10 में, finally my brethren, अंत में मेरे भाइयों, कभी बोला tomorrow my brethren, निदान, tomorrow my brethren, ऐसा नहीं कहा कि कल मेरे भाइयों, in the days of old you're my brethren. पुराने दिन के बारे में मेरे No, भाइयों, no, no, finally my brethren.
अंत में मेरे भाइयों, be strong शक्तिमान बनो, in the Lord. प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनो। Hallelujah. What is the final word from the Lord? तो प्रभु का अंतिम शब्द क्या है हमारे Be लिए? strong in the Lord प्रभु में बलवंत हो जाओ and the power of his might. और उसके सामर्थ में शक्तिमान बन जाओ। Ephesians 3:16 says इफिसियों का 3:16 कहता है that he would grant you according to his glory to be strengthened ताकि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह धन दे दे With कि तुम might. उसके आत्मा में भीतरी मनुष्य को सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। Yes, you will be strengthened with might through his spirit in the come on church, in कहां पर? the तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाओ। we are so addicted to this TV. देखो Don't ये- open the Bible. देखो टीवी का हमें इतना पीछे सब लोग बाइबल को लाए because you need to learn the word. हमें वचन को सीखना जरूरी है Hallelujah. He would grant you ताकि वो तुम्हें दे दे according to his glory to be strengthened with might by the Holy Spirit in the inner man, not outside. देखो वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे दे कि तुम अपने आत्मा के अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाए। What does it speak? इसका मतलब क्या है? That means the source of your power is the Holy Ghost. यानी तुम्हारा जो शक्ति का जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा है, उसका सूत्र। The Holy Spirit is the believer's source of power. एक विश्वासी का सूत्र, सामर्थ का जो सूत्र क्या है वो पवित्र It's आत्मा है। not only the Holy Spirit is a helper. पवित्र आत्मा केवल हमारा सहायक ही नहीं He है, is our helper. पवित्र आत्मा हमारा He is the सहायक source of our power. हमारे शक्ति का वो सामर्थ्य And भी he is है, a superpower in our life. इसी वो हमारे जीवन के लिए शक्तिमान है। That's what when Jesus was baptized in the Holy Ghost, इसलिए जब यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा the हुआ Holy Spirit manifested as a dove. तो पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतर आया। Hallelujah. हालेलुया। And the Holy Spirit came upon Jesus. जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतर आया, He was also preparing Jesus for death, burial, and वो यीशु की तैयारी कर रहा था उसके मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के लिए भी। and also he was preparing his followers, Jesus followers, for the life after death on this earth. और वो यीशु के चेलों को भी तैयारी कर रहा था कि यीशु के मरने के बाद जो जीवन है उस जीवन के लिए भी वो तैयारी कर रहा था। Church, if you die without the Holy Spirit, कलीसिया, अगर पवित्र आत्मा के बिना आप मर जाओगे life after death, you cannot walk with the Holy Spirit. तो मृत्यु के बाद जो और एक जीवन है वो पवित्र आत्मा के साथ में तुम चल नहीं सकते। Yesterday, I told my friend, कल मेरे दोस्त से कहा, you watch YouTube and messages. बाहर ट्रम्पेट साउंड होएगा ना, you will watch in the YouTube, but you are still there watching. मैं बोला, पासा ने कहा उसे कि तू YouTube के मैसेज संदेश देखते रहे, बाहर तुरी की आवाज फूंकी जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ संदेश देखते रहोगे YouTube के, That is also telecasted. क्योंकि वो भी टेलीकास्टेड है, You are there watching. लेकिन आप वहां पे उसको देख रहे Why? हो। Because you are not recognizing the voice of the trumpet, because the Holy Spirit is not in you. क्योंकि तुम पवित्र आत्मा या जो तुरी की जो आवाज है, नरसिंह की आवाज को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा निकल चुका है। Hallelujah. Are they with me? The lifestyle without the Holy Spirit is waste. पवित्र आत्मा की जीवन बिना जो जीवन है वो व्यर्थ जीवन है। From the natural limitation of the human, though, when the Holy Spirit comes, it takes you out of the flesh and makes you to move in the power of His Spirit. मनुष्य के जीवन में तो सीमाएं हैं उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, उन सारे सीमाओं को तोड़कर तुम्हें वो जो है एक अलौकिक में ले जाता है। God knew प्रभु जानते थे you and I cannot fulfill the promises of God. कि तुम और मैं प्रभु के वादों को पूरा नहीं कर God सकते। knew you and I cannot fulfill His purposes. तुम और मैं प्रभु के जो उद्देश्य हमारे लिए उसे पूरा नहीं कर सकते। That's why जानते थे। God gave the Holy Spirit in the inner man. इसलिए तो प्रभु ने हमारे अंदरूनी मनुष्य को का आत्मा दिया है। What happens when the Holy Spirit dwells in an inner man? क्या होता है जब प्रभु पवित्र आत्मा एक अंदरूनी मनुष्य के अंदर If निवास you करता है, read क्या in होता है? Matthew chapter 28:18, अगर मत्ती का 28-18 पढ़ोगे, oh, very powerful. Jesus said, यीशु ने कहा, all authority has been given to me in heaven on earth. ओके, यीशु ने उनसे उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Hallelujah. The same authority वही अधिकार He transferred to His disciples उन्होंने अपने चेलों को दिया
through the power of His Spirit. अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के But द्वारा। Jesus has the power to influence or command in your inner man. लेकिन यीशु मसीह का पास सामर्थ है कि तुम्हारे अंदरूनी मनुष्य के ऊपर वो प्रभाव डाल सकते हैं। Hallelujah. You know the power of a Holy Spirit filled believer as authority in Christ Jesus. जानते हो एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ है उसके अंदर अधिकार होता है। What is the definition of power? तो ये सामर्थ का मतलब क्या है? Influence, वो प्रभावित होता है, authority, उसका पास अधिकार होता control, है, चीजें उसके नियंत्रण में, command, वो आज्ञा दे सकता है and leverage. और वो Leverage. It's a distributing power. और वो उस सबको बांटता भी है। It's an influence. वो लोगों पे प्रभाव It's डालता है, authority. अधिकार है, It's control. वो नियंत्रण करता And है it's a command. और आज्ञा देता है। Hallelujah. Hallelujah. That is the definition of the power. वो सामर्थ का समझ है। Think about you are a believer filled with the Holy Spirit power. सोचो आप एक विश्वासी हो जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए हो। You are the person of influence. आप लोगों पे प्रभाव डालने वाले You are the व्यक्ति हो। person with authority. आप एक अधिकारी व्यक्ति हो। You are the person who can control the works of the devil. आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो शैतान के शब्दों चीजों को काबू कर You सकते are the हैं। person who command the devil to flee. He will flee in आप Jesus' ऐसे name. व्यक्ति हो जो शैतान को आज्ञा दे सकते हो निकल जाने के लिए, उसे निकल जाना ही है। What is the opposite of this power? ये सामर्थ के ऑपोजिट यानी विपरीत क्या है? Oh, this is very powerful. ये बहुत सामर्थ्य है। What is the opposite of this power? ये सामर्थ के विलाप क्या है? It is weakness. और ये कमजोरी। Say with me, weakness. कहो Hallelujah. कमजोरी। Samson was filled with the Holy Ghost power. सैमसन तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ था, But weakness took him out of the Holy Spirit. लेकिन ये कमजोरी ने उसे पवित्र आत्मा से अलग कर दिया। Hallelujah. The power is gone. पास सामर्थ्य चला गया, He became helpless. वो कमजोर हो गया। You know, opposite to the power is weakness, helplessness, powerlessness. देखो ये सामर्थ है, उसका विपरीत जो है उल्टा क्या है? वो है कमजोरी है। Have you received the Holy Spirit since you came to the Lord or believed in the Lord or baptized in the holy water? तुमने पवित्र आत्मा को कब पाया था? जब तुमने प्रभु पे विश्वास किया था, तुमने बपतिस्मा लिया था, या पानी का बपतिस्मा हुआ तब तो हुआ था तुम्हें? What happens? क्या होता है? How do you know कैसे तुम्हें पता that चले? you have the Holy Spirit in the inner man? क्या तुम्हारे अंदरूनी मनुष्य में पवित्र आत्मा है? We all need power. हम सबको सामर्थ की We जरूरत all need authority. है, सबको अधिकार की जरूरत है। The other day I was ministering in one church. कुछ दिन पहले मैं एक कलीसिया में सेवकाई कर रहा था, As I was preaching, जैसे प्रचार कर रहा a था, big tall lady, एक ऊंची कद की औरत आई, not a lady, woman, एक स्त्री, very old lady. बुजुर्ग स्त्री थी। As I'm preaching, जैसे मैं प्रचार कर रहा she था, stood up and started coming. Oh. ऐसे खड़े रह के आगे आने लगी। मैं सोचने लगा इसको क्या हो गया? सोचने लगा कि आगे इसको क्या हो गया? The old lady, बुजुर्ग औरत थी, old woman, बुजुर्ग औरत थी। and she started to manifest. Ooh, ooh. और फिर वो जो है प्रदर्शन ऐसे करने लगी। And what was my topic? तो मेरा संदेश का शीर्षक क्या था? Holy Spirit is a superpower. पवित्र आत्मा जो शक्तिमान है। Hallelujah. And in the presence of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में she's almost 74 years old. कुछ 74 साल की थी वो। Can you see demon inside her? क्या आप देख सकते हो उसके अंदर दुष्ट आत्मा And the भरा हुआ demon था? left. I didn't do anything. मैंने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। I दुष्ट आत्मा started निकला। preaching. मैं तो प्रचार करते गया As the demon comes, I'm preaching more powerfully. जैसे दुष्ट वो आत्मा से भरी वो आगे आ रही थी, मैं प्रचार करता गया Because I'm not weak. क्योंकि मैं कमजोर I am नहीं, not helpless. मैं बेहाल नहीं I am हूँ, not powerless. मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर सामर्थ Because नहीं the है। one who is in me is greater than the one who is in the world. His name is superpower. He is called Holy Spirit. क्योंकि जो मुझ में है वो इतना सामर्थ उससे भी बढ़कर जो संसार में है, और उसका नाम है, वो एक शक्तिमान व्यक्ति और वो है पवित्र आत्मा। Hallelujah. You know, if you read in 2 Peter chapter 1 verse 3, please दूसरा make पत्रस a का note. 1:3 अगर आप पढ़ोगे, आप लोग इसका नोट लिख लीजिए सब। You know, when the Holy Spirit dwells in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, His divine power has given to us all things that pertaining to life and godliness. His divine power, listen to this,
उसके उसके ईश्वरीय सामर्थ has given us to us all. को हमें हमें हम सबको ये दे दिया गया है। इधर से समीर से एना से लेकर लास्ट तक His divine power is given to us all. यहाँ समीर से लेके आना से लेके पीछे सबके लोगों तो सबको ये दिया गया है। Things, say with me, things that pertaining to life वो चीजें जो जीवन के संबंध में and रखता है godliness. और भक्ति में से संबंध रखता है। Ask somebody who wrote this. किसी से पूछो ये पूछो किसने ना, लिखा है? किसने लिखा है? हाँ? अरे बोलिए ना डेविड। हाँ। The same Peter was one of the 11 whom Jesus told not to go anywhere until you receive the power. देखो ये पत्रस ने लिखा है ये पुस्तक। तो ये पत्रस जो है वो 11 में से एक था जिसे यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे वहां से निकलो मत, वहीं पर रुके रहो। You रुके दे। अभी सामर्थ आने वाला है, निकल जाता है चर्च से बाहर। But Peter लेकिन पत्रस is one of the 11. 11 में से एक। Jesus told not to go anywhere, Peter, until you receive power. यीशु मसीह ने कहा पत्रस तू कहीं पर नहीं जा, यहीं पर रुके जब तक तू सामर्थ नहीं प्राप्त करते The हो। same Peter is writing this, who received the power. अभी यही पत्रस जिसने सामर्थ को प्राप्त किया अभी ये लिख What रहा is he है। writing? God has given us His divine power प्रभु ने उसकी ईश्वरीय सामर्थ हम सबको दी है for everything we need of life. तो हमारे जीवन के लिए जीवन के संबंध में जो चीजें हमें चाहिए वो सब दी है। Everything need of life and godliness. देखो जीवन और भक्ति दोनों के संबंध जो चीजें हैं वो सब प्रभु ने हमें दी है। Life and godliness comes through the power of the Holy Spirit. देखो जीवन और भक्ति वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आती है। You know, I always say from the beginning, a crack jack biscuit, namkeen meeta, 50-50. मैं हमेशा पहले से कहता हूँ क्रैक जैक बिस्किट कैसे कहते हैं, आधा नमकीन आधा मीठा। You want to be strengthened in your life? क्या अपने जीवन में तुम बलवंत होना You चाहते हो? want to be godly in your life? अपने जीवन में तुम भक्ति बनना You चाहते need हो? the power of the superpower, the Holy Spirit. तुम्हें वो शक्तिमान सामर्थ की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा Turn का to सामर्थ। somebody and say, superpower at work. किसी से कहो कि शक्तिमान सामर्थ कार्य में है तुम्हारे जीवन में। Say with me बोलो now. If you are godly, okay, I'll not go there. If you believe, say this. अगर आप विश्वास करते हो तो इसे कहे The Holy Spirit, पवित्र आत्मा my superpower, मेरा सुपर पावर is working in me मेरे अंदर काम कर रहा and है strengthening my life और मेरे जीवन को ताकत दे रहा है and my godliness. और मेरे भक्तिपन को। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.